Hello, students, how are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. A very good morning to all of you. I am Fatima Kulsala from Admir Green School, Jadeshwar, and I welcome you all to our English class. I hope that you have fared well and scored good marks in your test. So, now from today onwards, we would be starting our term 2 syllabus. So, let's start our new syllabus, first chapter, that is Grandpa Fights an Ostrich. So, here, students, this is a story related to Grandpa who narrates the story where he gets into a fight with an ostrich. Before moving ahead with the chapter, let's just collect some information about the ostrich. So you can read in your book. I request you students to open your textbook, page number 99. So I hope that you opened your book. So let's read the interesting facts about ostriches. An adult ostrich is 7 to 10 feet tall and it weighs 100 to 160 kg. So जो बड़ा ऑस्ट्रिच होता है, एडल्ट ऑस्ट्रिच मतलब ग्रोन अप, राइट, वो 7 to 10 फीट टॉल होता है और उसका वज़न कितना होता है 100 to 160 kg. Ostriches are large and flightless birds. Flightless means they can't fly in the sky because of their heavy body. Their bones are not hollow, that's why they can't fly. They live in the dry, hot savannas and woodlands in Africa. They can run at the speed of 70 km per hour. Ostriches fight with their legs. They kick forward because that's the direction in which their legs bend. Each two-toed foot has a long, sharp claw, and a solid kick can kill a lion. So you can just imagine कि उसका किक कितना सॉलिड होगा कि एक लायन को भी मार सकता है. और उसका पैर जो है वो किक करने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ाता है बिकॉज उसका जो बेंडिंग का मूवमेंट है, यू कैन सी द इमेज ओवर हियर, राइट, वो बेंड होता है आगे की तरफ. हमारा पैर कैसे बेंड होता है, पीछे की तरफ, है ना, वैसे ही इनका पैर आगे की तरफ बेंड होता है. सो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द फैक्ट्स ओवर हियर. Ostriches are world's largest living birds. They are considered to be the largest birds. Birds का जो कैटेगरी है उसमें वो सबसे बड़े हैं. Ostriches have 3 stomachs and an ostrich egg is the largest. It has the largest egg. Okay. Now let's read the story given over here. As I told you, it's a story about a grandpa, right, who is narrating his fight with an ostrich, जिसके अंदर वो एक ऑस्ट्रिच के एनकाउंटर में आते हैं और उसके साथ उसकी फाइटिंग हो जाती है. एंड वी विल सी हाउ द ग्रैंडपा सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑस्ट्रिच. It is a very interesting story, so please pay attention and you will enjoy a lot. So let's start reading the chapter. Before my grandpa joined the Indian Railways, he worked for a few years for the East African Railways. It was during this time that he had this famous encounter with an ostrich. Here is the story in his own words. So, before grandpa joined Indian Railways, मतलब Indian Railways के लिए वो काम करने स्टार्ट किया, उससे पहले कुछ साल तक उन्होंने ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज़ में काम किया था. और वो उस टाइम का ये इंसिडेंट है जो यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है. दैट इंसिडेंट हैपन व्हेन ही वाज इन ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज एंड ही इज़ गोइंग टू नरेट अबाउट द फेमस एनकाउंटर. एनकाउंटर का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, मतलब हम किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मिलने को, लेकिन सडनली कोई मिल जाता है, राइट. या फिर हम किसी के साथ लड़ाई में उतर जाता है या आर्ग्यूमेंट हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था. नाउ लेट्स सी. नाउ दिस स्टोरी इज टोटली इन ग्रैंडपाज वर्ड्स. ओके, ये जो ग्रैंडपा है वो पूरी स्टोरी नरेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो आई है, आप जब भी रीड करोगे ये पूरा चैप्टर तो उसमें आई यूज़ किया है हर जगह पर.
तो यहाँ पे आई किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रैंडपा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। I was engaged in the laying of a new railway line. I lived in a small township, but my work was some 12 miles away. I had to travel to and fro the worksite on horseback. So, वो जब ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज के लिए काम करते थे, एट दैट टाइम ही वॉज एंगेज्ड इन लेइंग अ न्यू रेलवे लाइन, मतलब पूरी एक रेलवे लाइन लगाई जा रही थी उस वक्त। ही वॉज एंगेज्ड मतलब ही वॉज वर्किंग ऑन दैट थिंग। एंगेज मतलब किसी काम के अंदर हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, वो। एंड आई लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन बट माई वर्क वॉज सम 12 माइल्स अवे, मतलब वो जहाँ पे रहते थे वहाँ से उनका जो काम करने की जगह है वो काफ़ी दूर थी। इट वॉज 12 माइल्स अवे। माइल्स मतलब यूनिट ऑफ मेजरिंग अ डिस्टेंस, जैसे हम लोग मीटर किलोमीटर पढ़ते हैं वैसे ही माइल्स होता है, ठीक है। माइल्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। एंड वॉट ही यूज टू ट्रैवल थ्रू, ही यूज टू ट्रैवल ऑन द हॉर्स बैक, मतलब वो हॉर्स पर बैठ के जाते थे। One day my horse had a small accident, so I decided to walk to work. I knew a shortcut through the hills that would save me about 6 miles. अभी एक दिन ऐसा हुआ कि हॉर्स के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया एंड दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू गो ऑन द हॉर्स, सो ही डिसाइडेड दैट ही विल वॉक टू द वर्क, मतलब वो चल के जाएगा उधर। जो ग्रैंडपा है वो चल के ही चले जाएंगे वहाँ से। बट what did he do? He didn't took a long way, he took a shortcut. Shortcut मतलब छोटा, मतलब कहीं से गली में से या ऐसे कोई रास्ता निकलता है जहाँ से वो जल्दी पहुँच जाते हैं। और वो शॉर्टकट कैसा था? इट वॉज थ्रू द हिल्स, मतलब हिल्स से होके जाता था और उनके 6 माइल्स बचाता था। मतलब टोटल कितना ट्रैवल करना था उसको? 12 माइल्स। उसमें से अगर वो शॉर्टकट लेते हैं तो सिर्फ 6 माइल्स चलना रहेगा उनको। The shortcut went through an ostrich farm or camp as it was called. और ये जो शॉर्टकट था वो कहाँ से होके जा रहा था? एक ऑस्ट्रिच फार्म था, वहाँ से होके जा रहा था, मतलब उधर से गुजरना था उनको। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैम्प। इट वॉज द ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग का मतलब होता है जिस सीजन में यंग वंस पैदा होते हैं, ठीक है। मतलब यू कैन सी द मीनिंग ओवर हियर। ब्रीडिंग मीन्स मेकिंग यंग वंस, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं वो वाला टाइम, ठीक है। सो उस टाइम पे आई न्यू दैट मेल बर्ड्स वो वेरी एग्रेसिव इन ब्रीडिंग सीजन, मतलब जब भी ब्रीडिंग सीजन होती है उस टाइम पे जो मेल बर्ड्स होते हैं, मेल ऑस्ट्रिच होते हैं, राइट, या मेल बर्ड्स जो भी होते हैं, दे आर क्वाइट एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब अगर आपने उसको पोक किया तो वो तुरंत ही फाइट पे उतर जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीइंग एग्रेसिव। एंड रेडी टू अटैक एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। स्लाइटेस्ट मतलब अगर थोड़ा सा भी उनको छेड़ा गया, प्रोवोक करना मतलब कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ जाए। प्रोवोक मीन्स टू मेक देम एंग्री बाय डूइंग समथिंग विच मेक्स देम एंग्री, राइट। ऐसी कोई भी छोटी सी चीज़ भी अगर किसी ने कर दी तो वो अटैक के लिए रेडी रहता था, राइट। बट आई ऑल्सो न्यू दैट माई डॉग वुड स्कैर अवे एनी बर्ड दैट माइट ट्राई टू अटैक मी। लेकिन उनका जो डॉग था, किसका? ग्रैंडपा का, वो उनके साथ ही हमेशा रहता था, ठीक है। सो उनको ऐसा था कि वो जो उनका कुत्ता है उसकी वजह से कोई भी बर्ड जो होगा वो उसकी तरफ नहीं आएगा या उसको अटैक करने नहीं गाएगा। वो जो डॉग है वो सबको ही भगा देगा। स्कैर अवे मतलब डरा के भगा देगा सबको ही। दैट माई ट्राई टू अटैक मी मतलब जो भी बर्ड उसको अटैक करने के लिए आएगा वो उसको भगा देगा, डॉग। दो इट मे सीम स्ट्रेंज, द फैक्ट इज दैट इवन अ बिग ऑस्ट्रिच अबाउट 9 feet tall will run faster than a race horse at the sight of small dog। मतलब सुनने में बहुत अजीब लगता है। दो इट मे सीम स्ट्रेंज मतलब इट मे बी स्ट्रेंज ऑफ हियरिंग दैट अगर एक बड़ा ऑस्ट्रिच विच इज़ अराउंड 9 feet टॉल अगर वो भी डॉग को देख ले, छोटे से डॉग को भी देख ले, अगर इट स्टार्ट्स रनिंग लाइक अ रेस हॉर्स, मतलब हॉर्स जो रेसेस में भागता है ना, उसके तरह वो ऑस्ट्रिच भी भागने लगेगा। और उसी की वजह से ये जो ग्रैंडपा थे, ही वॉज क्वाइट फीलिंग सेफ कि मेरा डॉग मेरे साथ है, सो द ऑस्ट्रिचेस वोंट अटैक
him. Okay. So I felt quite safe in the company of my dog. When I reached camp, I climbed through the wire fencing and keeping a good lookout, dodged across the open spaces between the thorn bushes. Now and then I saw a few birds feeding some distance away. So जैसे ही वो कैंप पहुँचे, ही क्लाइंब थ्रू द वायर फेंसिंग. आगे वो जो पूरा उनका फार्म होगा, उस फार्म को फेंसिंग की गई होगी. फेंसिंग का मतलब आपको मालूम होगा, जो वायर से पूरे बॉर्डर के ऊपर बांधा जाता है, राइट. दैट इज़ कॉल्ड वायर फेंसिंग. सो उन्होंने वो वायर फेंसिंग को ऊपर से क्रॉस कर दिया एंड ही केप्ट अ गुड लुकआउट. लुकआउट का मतलब इधर उधर देखते रहना, राइट. एंड डॉज्ड अक्रॉस द ओपन स्पेसेस. डॉज मीन्स टू मूव क्विकली एंड टू अवॉइड समथिंग. दैट मीन्स कि वहाँ जो बर्ड्स थे उनको अवॉइड करने के लिए जो भी जगह खुली थी बीच बीच में, थॉर्नी बुशेस के बीच बीच में जो भी खुली जगह थी, वहाँ से ग्रैंडपा जल्दी जल्दी निकलने का ट्राई कर रहे थे. और वहाँ पे क्या दिख रहा था उनको, थोड़ी थोड़ी जगह पे कुछ बर्ड्स दिख रहे थे जो फीडिंग कर रहे थे, राइट. मतलब खाना खा रहे होंगे. I had gone about a half mile from the fencing when my dog spotted a hare. So अभी तो सिर्फ हाफ अ माइल ही क्रॉस हुआ होगा, राइट. और फेंसिंग को मतलब जब क्रॉस किया फेंसिंग के ऊपर से जब चढ़ के आ गए ग्रैंडपा, वहाँ से सिर्फ हाफ ही माइल कवर किया था उन्होंने. और वहाँ पे उनका जो डॉग था उसने क्या देखा, हेयर देखा. हेयर का मतलब क्या होता है, रैबिट लाइक एनिमल. रैबिट जैसा ही दिखता है, ठीक है. रैबिट नहीं होता है लेकिन रैबिट जैसा ही दिखता है. नाउ चेजिंग हेयर्स वॉज द डॉग्स पैशन. अभी हेयर्स को चेज करना मतलब उनके पीछे पीछे भागना और पकड़ना, वो डॉग का सबसे बड़ा पैशन था. पैशन मतलब सबसे फेवरेट चीज़ जो उसको करने में बहुत मज़ा आती थी. ओके. ही यूज टू डू दिस थिंग विद ग्रेट लव. और उस वजह से अभी डॉग को तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी सबसे फेवरेट चीज़ करने में लगा हुआ है. और वो क्या है, चेजिंग हेयर्स. आई ट्राइड कॉलिंग हिम बैक बट आई न्यू इट वॉज होपलेस. मतलब ग्रैंडपा ने उसको बुलाने का ट्राई किया वापस, बट इट वॉज होपलेस बिकॉज उसको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उसको मिल गई है. सो ऑब्वियसली द डॉग इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू हिज ओनर. I do not know whether it was the dog's bark or my shouting, but what I was avoiding immediately happened. The ostriches were scared and began darting to and fro. Now, अभी ये जो हुआ इतना, राइट, वो डॉग हेयर के पीछे भागने लगा और ग्रैंडपा चिल्लाने लगे, राइट. और ये जो डॉग होगा वो भी हेयर को देख के बार्क करने लगा होगा. सो पता नहीं क्या चीज़ थी, शायद ग्रैंडपा जो चिल्लाए वो था या फिर वो डॉग का जो बार्क था वो. लेकिन जो चीज़ वो अवॉइड कर रहे थे इतनी देर से, राइट, बाय मूविंग स्पीडीली, द थिंग विच ही वॉज अवॉइडिंग मतलब टू कम इन टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द बर्ड्स, वो ही चीज़ हो गई. क्योंकि जहाँ वो वहाँ पे जो ऑस्ट्रिचेस थे वो डर गए ये आवाज़ से, है ना. और वो लोग इधर उधर मूव करने लगे. सडनली दे स्टार्टेड मूविंग क्विकली हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, आगे पीछे हर जगह भागने लगे वो लोग. दे स्टार्टेड मूविंग अराउंड. Suddenly I saw a big male bird emerge from a thicket about 100 yards away. फिर उन्होंने क्या देखा सडनली, अभी डॉग तो क्या हो गया, उधर से भाग गया, है ना. वो तो हेयर के पीछे पीछे चला गया. और जो वहाँ पे ऑस्ट्रिचेस थी वो डर गई थी. दे वर स्कैर्ड, राइट, एंड दे वर मूविंग टू एंड फ्रो एंड दे वर मूविंग वेरी क्विकली. सडनली जो ग्रैंडपा है उन्होंने एक बड़ा सा मेल बर्ड मतलब बड़ा सा ऑस्ट्रिच, मेल ऑस्ट्रिच एक थिकेट में से निकलते हुए देखा. व्हाट इज थिकेट, व्हाट डू यू मीन बाय थिकेट? मीनिंग इज गिवन ओवर हियर, यू कैन सी दैट अ ग्रुप ऑफ बुशेस ग्रोइंग क्लोजली टूगेदर. मतलब बुशेस क्या होता है, जो काफ़ी छोटे होते हैं, मतलब ग्रास जितने नहीं उससे बड़े, मतलब थोड़े बड़े होते हैं लेकिन ट्री जितने टॉल नहीं होते हैं. सो दोज कम्स अंडर द श्रब्स कैटेगरी.
श्रब की कैटेगरी में आते हैं जो कुछ हाइट तक ग्रो होते हैं। तो वैसे ही जो बुशेस थे उनका पूरा जो ग्रुप होगा साथ में ग्रो हो रहे होंगे, डैट इज़ कॉल्ड थिकेट। तो वहाँ से एक ऑस्ट्रिच बाहर आया, इमर्ज मतलब इट केम आउट फ्रॉम दैट थिकेट which was about 100 yards away. Now here yards is again considered to be a measuring distance. ठीक है, उसको भी एक यूनिटी गिना जाता है। जैसे हम लोग मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ऐसे गिनते हैं ना, वैसे ही यार्ड्स भी एक काउंटिंग की मेथड है। इट इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस। ही स्टूड स्टिल एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। यहाँ पे ही मतलब द मेल ऑस्ट्रिच, ओके। इट स्टूड स्टिल, वहाँ से बाहर निकल के वो वहाँ पे खड़ा होके क्या कर रहा था, ग्रैंडपा को स्टेयर कर रहा था। स्टेयर करना मतलब टू लुक एट समबडी केयरफुली फॉर फ्यू मोमेंट्स। आई स्टेयर्ड बैक, मतलब ग्रैंडपा ने भी क्या किया, वो भी उनको देख रहे थे, घूर रहे थे, है ना। एंड देन एक्सपैंडिंग हिज शॉर्ट विंग्स एंड विथ हिज टेल इरेक्ट ही केम टूवर्ड्स मी। और फिर उसने पोजीशन ले ली ऑस्ट्रिच ने, किस चीज़ के लिए, भागने के लिए। क्या किया उसने सबसे पहले अपने जो विंग्स थे, शॉर्ट विंग्स थे, उसको एक्सपैंड किया, मतलब ब्रॉडन किया, बड़ा किया। और उसकी जो टेल थी उसको इरेक्ट किया। इरेक्ट मतलब इट हैज़ टू बी इन द स्ट्रेट अपराइट पोजिशन, इट माइट बी बेंड, लेकिन उसको स्ट्रेट कर दिया। एंड ही स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स द ग्रैंडपा। एज आई हैड नथिंग, not even a stick with which to defend myself, I turned and ran towards the fence. अभी ग्रैंडपा के पास कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली ही वॉज फीलिंग वेरी सेफ बिकॉज द डॉग वॉज विथ हिम, है ना। लेकिन अभी डॉग तो भाग गया। उनको तो ऐसा था मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे पास डॉग तो है ही मेरी सेफ्टी के लिए। लेकिन अभी डॉग तो था नहीं और उनके पास कुछ स्टिक वगैरह भी नहीं था कि किसी तरह वो अपने आप को डिफेंड कर पाए। डिफेंड मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। आई टर्न एंड रैन टूवर्ड्स द फेंस। तो उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, ही डिडंट हैड एनी अदर ऑप्शन, ही हैड टू गो बैक टूवर्ड्स द फेंस। बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस। अनइक्वल रेस क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि ग्रैंडपा जो थे उनके पैर थे, उस पैर से वो जितना वो भाग सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से ऑस्ट्रिच भाग सकता था, ओके। बिकॉज वॉट वर माई स्टेप्स ऑफ 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet. That means कि जो ग्रैंडपा थे उनके स्टेप्स में कितना फीट कवर होता था, 2 or 3 feet, राइट। लेकिन जो क्रिएचर मतलब जो ऑस्ट्रिच था उसके जो स्टेप्स थे मतलब इतने लंबे थे, दे आर कंसिडर्ड टू बी ग्रेट स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स मीन्स लंबे लंबे स्टेप, बड़े बड़े स्टेप लेना, लंबे लंबे नहीं बड़े बड़े स्टेप्स लेना, राइट। एंड इट वॉज अराउंड 16 to 20 feet। तो कहाँ से मैच होगा, राइट। जैसे कि हेयर और टॉर्टोइस की रेस होगी तो हेयर कितना स्पीड से भागेगा और टॉर्टोइस बेचारा कितना स्लो चलता है ना। तो फिर वो तो रेस हो ही नहीं सकती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ग्रैंडपा और ऑस्ट्रिच के बीच में रेस हो रही थी। There was only one hope, to get behind a large bush and try to dodge the bird until the help came. A dodging game was my only chance. अभी उसके साथ रेस तो लगाई जा नहीं सकती है क्योंकि अगर रेस लगाई तो कौन जीतेगा, ऑस्ट्रिच ही जीत जाएगा, है ना, क्योंकि वो बड़े बड़े स्ट्राइड्स ले रहा था जबकि ग्रैंडपा इतने बड़े बड़े स्टेप्स थोड़ी ना ले पाएंगे। सो द ओनली चांस ऑफ सेविंग हिमसेल्फ, मतलब ग्रैंडपा के पास एक ही चांस था अपने आप को बचाने के लिए कि एक बड़ा बुश हो, उसके पीछे वो छुप जाए और वहाँ से उधर से इधर उधर मूव करना चालू करे ताकि वो जो बर्ड उसके पास आके खड़ा है उससे बचाने के लिए तब तक कोई वहाँ पे आ जाए। और डॉजिंग गेम वॉज माई ओनली चांस। एज आई टोल्ड यू बिफोर, डॉज मीन्स टू मूव क्विकली टू अवॉइड समथिंग, मतलब इधर उधर मूव करना। जैसे हम लोग अगर आप लोग पकड़म पकड़ाई जैसी गेम खेलते हो, राइट, तो उसके अंदर क्या होता है, द पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू फैच यू जस्ट हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम हिम, राइट। सो व्हाट डू, यू कीप ऑन मूविंग। जैसे ही वो आपको हाथ लगाने आएगा वो आप उधर से चले जाओगे। वैसे ही अभी यही एक गेम बाकी थी जिसके थ्रू ये जो ग्रैंडपा है उससे बच सकते हैं। वरना मैंने आपको पहले ही बताया जब हमने स्टार्ट किया था रीडिंग कि अगर
अगर ऑस्ट्रिच किक करेगा किसी को तो उसकी किक इतनी डेंजरस हो सकती है कि वो एक लायन को भी मार सकता है ना। तो फिर ये तो बेचारे ग्रैंडपा है तो ऑब्वियसली उनको हर्ट हो ही जाएगा। और उनके जो क्लॉज होते हैं, बड़े वाले नाखून, राइट, नेल्स, वो बहुत ख़राब तरीके से चुभ जाते हैं। अगर किसी को वो पकड़ ले, ऐसे ग्रिप कर ले, राइट, ट्रैप करने का ट्राई करे किसी को अपने नेल्स में, अपने क्लॉज के अंदर, सॉरी, तो उसके बॉडी में उसके जो नेल्स है पूरे घुस जाएंगे। सो द ओनली चांस ऑफ ग्रैंडपा सेविंग हिमसेल्फ इज टू गेट बिहाइंड अ लार्ज बुश एंड ट्राई टू डॉज। डॉज मैंने जैसे आपको बताया कि इधर उधर मूव करना ताकि वो बर्ड से बच पाए। And so I rushed for the nearest clump of bushes and waited for my hunter. The great bird wasted no time and he was soon there. और इसीलिए ग्रैंडपा ने क्या किया, जो नियरेस्ट क्लम्प था, क्लम्प का मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ बुशेस जो साथ में था, ठीक है, थॉर्न बुशेस, उसके पास जाके वहाँ पे वो खड़े हो गए और किसकी राह देख रहे थे, अपने हंटर की। यहाँ पे हंटर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो ऑस्ट्रिच है वो क्या कर रहा है, उनको हंट करने आ रहा है ग्रैंडपा को, इसीलिए उसने ऐसा बोला कि मैं अपने हंटर की राह देख रहा हूँ। द ग्रेट बर्ड वेस्टेड नो टाइम एंड ही वॉज सून देयर। जैसे कि हमने आगे ही पढ़ा कि उनके साथ रेस तो हो नहीं सकती है क्योंकि ग्रैंडपा के स्टेप्स और ऑस्ट्रिच के स्टेप्स में बहुत फ़र्क है, राइट। देन द स्ट्रेंजेस्ट बैटल टुक प्लेस। और उसके बाद, अभी आपने कभी सुना है कि किसी ऑस्ट्रिच और ग्रैंडपा के बीच में फाइट हुई हो? नहीं, राइट। सो इट इज़ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब कुछ ऐसा वियर्ड चीज़ जो पहले कभी हुआ ही नहीं है। आई डॉज्ड दिस वे एंड दैट, टेकिंग ग्रेट केयर नॉट टू गेट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रिच डेडली किक। वो इधर उधर मूव होने लगे जैसे ही वो ऑस्ट्रिच उनके ऊपर उनके ऊपर अटैक करने जाता था, वैसे ही वो इधर उधर डॉज होने लगे, मतलब मूव होने लगे। और ज़्यादा केयर लिया कि वो डायरेक्टली ऑस्ट्रिच के सामने ना आ जाए, मतलब छिपे हुए रहे। मतलब अगर वो बुशेस के पीछे रहेंगे तो बुशेस किसका काम करेगा, शील्ड का काम करेगा उनके लिए। शील्ड मतलब कोई चीज़ वॉल जैसी जो उनको प्रोटेक्ट कर पाए। तो वैसे ही वो ट्राई कर रहे थे कि मुझे बिल्कुल सामने नहीं आना है ऑस्ट्रिच के, आई नीड टू बी बिहाइंड द बुशेस, तो ही उसका जो किक है वो मुझे नहीं लगेगा। और यहाँ पे लिखा गया है सी ऑस्ट्रिच डेडली किक, मतलब उसकी जो किक थी, जैसे हमने पढ़ा कि वो लायन को भी मार सकता है, वैसे ही ये ऑस्ट्रिच की किक अगर ग्रैंडपा को लग जाती तो शायद वो बच नहीं पाते, राइट। एंड ऑस्ट्रिच किक फॉरवर्ड एंड विथ सच टेरिफिक फोर्स दैट इफ यू वर स्ट्रक their huge chisel like nails would cause you much damage। और अगर ऑस्ट्रिच की किक लग जाती है, और ऑस्ट्रिच जैसे कि हमने पढ़ा इट किक्स फॉरवर्ड, क्योंकि उसका जो पैर है वो कैसे बेंड होता है, फॉरवर्ड बेंड होता है, तो वो आगे की तरफ किक मारता है। और वो इतना फोर्स यूज़ करता है, इट यूजेस सो मच ऑफ फोर्स कि इन केस इफ़ यू गेट हर्ट विथ हिज किक, उनके जो चीजल लाइक नेल्स है, चीजल मीन्स इट इज़ वेरी शार्प, उसके जो चीजल लाइक का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू सी वेरी शार्प, एंड चीजल इज़ अ काइंड ऑफ शार्प टूल। एक टूल आता है जो बिल्कुल नाइफ जैसा होता है, एकदम ही शार्प। तो इसके नेल्स जो है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है, क्लॉस को, ऑस्ट्रिच के क्लॉस को चीजल के साथ कंपेयर किया गया है। इतना ज़्यादा नुकीला होता है वो, विच वुड कॉज यू मच डैमेज, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर उसका किक लग जाता है और आपके बॉडी में उसका नेल घुस जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी। वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।